and welcome to Students Wala Mathematics. Today we are going to start our mathematics module and we'll be beginning with our chapter number 1, that is number systems. Okay, alright. So in here we'll be dealing with different types of numbers. Till standard 8 we have been studying about rational numbers, and now we'll be studying about a different kind of number, that's irrational number. Okay, a lot of new things will be there. Don't be scared by just the name that it's irrational and all that. Okay, just don't worry about that, because we'll be clearing all sorts of questions, all sorts of doubts. Okay, we'll be clearing questions from Pearson books, questions from your NCERT book, from RS Agarwal's book, from RD Sharma book, different types of test papers, NTSC level questions and whatnot. Okay, so everything will be done here. First, let me try to explain you NCERT book. Along as we move through these, these line by line explanations, I'll be adding a few more points also, which will be somewhere of the advanced level. Okay, for example, let me just tell you. In number systems, we have 1.7 till 1.1 to 1.7 parts of the chapter. Okay, till laws of exponents for real numbers we have it. Now, what I'll be adding to this is HCF and LCM. I know many of you are knowing it, but in standard 10, the first chapter number systems, you'll have to study about HCF and LCM. Okay, and in NTSC level questions, standard 9th children have to know about HCF, LCM concepts. So I'll be dealing with that in here. Okay, and then we'll be solving different sorts of questions and many fun facts we'll be learning about it. So this will be an interesting class. Okay, now before moving with this chapter, the very first thing is about number systems. Since childhood, we have been learning about natural numbers, whole numbers, counting numbers and all that. So let's just quickly recap that. Okay, let's just quickly recap that. So I'm going to start here. First, I'll write here number systems. Okay. Now, this number system has been divided. Firstly, we have, the main, let me write it and then I'll explain. Firstly, we have complex number, okay? That is divided into two types of numbers. Real number and imaginary number, okay? And then further division of real numbers into two kinds, that is rational, irrational. Don't be just scared by the names, I'll explain it. This has been divided into fractions, integers, and then at side let me write about whole numbers, natural numbers. Okay, fine. These two are for now. Now let me explain. Basically, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं क्योंकि हम लोग जो भी नंबर्स पढ़ते हैं वो होते तो कॉम्प्लेक्स ही है ना. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर. अब रियल नंबर का एक डेफिनेशन ये होता है, बेसिकली दो डेफिनेशन होते हैं, ठीक है. एक डेफिनेशन ये होता है कि उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. व्हाट इज रियल लाइन? इट इज़ अ नंबर लाइन, ठीक है. उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. दूसरा डेफिनेशन इसका ये होता है कि इसका अगर स्क्वायर रूट किया जाए, तो वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है. पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है. और इमेजिनरी नंबर्स इसके उल्टे होते हैं, इनको रियल लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ना ही इनका स्क्वायर रूट तो अनडिफाइंड होता है इनका स्क्वायर रूट, ठीक है. जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ. अच्छा, मैंने बोला तुमको 4 का तुम स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है. 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सही बात है. अगर मैंने बोला -4 ऐसे है माइनस में, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, -2 हो जाएगा. तो ये वे गेटिंग पॉजिटिव नंबर, ये वे नेगेटिव नंबर. तो ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं. बट अगर मैंने कहा कि -4 ही पूरा तुम्हारा अंडर रूट में ही है,
तो क्या आंसर आएगा इसका? इमेजिन अबाउट इट, इसका कोई आंसर आने वाला है? इसका तो अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा. दिस आंसर विल बी अनडिफाइंड, सो हियर विल नॉट गेट एनी आंसर. सो सच काइंड्स ऑफ नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, ये दोनों हो गए रियल नंबर्स. नाउ these real numbers are further divided into rational and irrational numbers. Rational numbers are of two types, fractions and integers. Now see here. रैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं जिनको p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर q 0 हो जाएगा तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ रैशनल नंबर्स में और फ्रैक्शंस में क्या अंतर होता है? ये भी तो p बाई q के फॉर्म में होता है, ये भी इसमें भी p बाई q इसमें भी q 0 नहीं हो सकता है. बट इसमें एक चीज़ होता है कि p एंड q इंटीजर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होते हैं. फ्रैक्शंस में क्या होता है? फ्रैक्शंस में p एंड q आर ओनली होल नंबर्स, दे आर नॉट इंटीजर्स. इंटीजर्स हो जाएंगे तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे. फ्रैक्शंस कैन नेवर बी नेगेटिव. इंटीजर्स होता है एक ग्रुप, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं. एक ग्रुप होता है जिसमें होल नंबर्स के साथ साथ नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स होते हैं. होल नंबर क्या होता है? जो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो होल नंबर्स स्टार्ट विद 0 एंड दे आर इनफाइनाइट, देन इट रन्स टिल इन्फिनिटी. एंड counting numbers or natural numbers, they start with 1 and then they end till infinity. So this was the whole number system which I have defined to you. Okay, now remember this. थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, चलो इरेज कर देते हैं अब. ठीक है, इसका तुम एक शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट. अगर नहीं तो अभी मतलब हम खुद से भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एज आई एक्सप्लेन. लेट मी रब इट नाउ. ओके, सो दिस वॉज अबाउट नंबर सिस्टम्स. एक प्रॉपर डेफिनेशन की लिस्ट होगी, वो मैं तुमको कल प्रोवाइड करूँगी. व्हेन हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन लिस्ट में प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, उसको अच्छे से रीड कर लेना. लेट्स मूव अहेड नाउ. अब देखो, नाउ द चैप्टर बिगिंस. ये तो होगा कि मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. अब होते हैं, मैंने बताया तुमको होल नंबर्स, होल नंबर बताया है ना. नेचुरल क्या हो रहा है? हाँ, होल नंबर बताया, फिर नेचुरल नंबर बताया, फिर कौन सा नंबर बताया? होल, नेचुरल, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स. और कोई नंबर बताया? इतना बताया ना. फिर तो फ्रैक्शंस हो गए, इनको रिप्रेजेंट नहीं है. होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को Z से. क्यों Z से रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये Z एक जर्मन वर्ड से आया है, इसका फुल नेम है ज़ाहल. ठीक है, ये जर्मन वर्ड से आया है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. एंड ज़ाहलन का मतलब क्या होता है? टू काउंट. नाउ इसको रैशनल नंबर कहते हैं. जब इसके ऊपर एक बार आ जाता है तब ये इरैशनल बन जाता है. ठीक है, ओके, दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. ठीक है, अब तो हो गया नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं. तो देखो, नंबर लाइन ऐसा एक लाइन होता है जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. किस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसीलिए इसको एक और क्या नाम दिया गया है? रियल लाइन. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रियल लाइन भी बोला जाता है. ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया. अब तुमको कुछ 2-3 चीज़ें और कुछ याद करना पड़ेगा. ये होता है बेसिकली कॉम्पोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, तो भी बताओ मुझे. तो तुम लोग क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कमेंट. ठीक है, कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स मैं नहीं बताऊंगी. दिस इज फॉर योर टास्क. ठीक है, चलो, यू आर गोइंग. व्हाट इज द होमवर्क? एक जगह होमवर्क लिख के रखते हैं ना. तो व्हाट इज द फर्स्ट होमवर्क आई हैव गिवन टू यू ऑल? टेल मी. राइट द डेफिनेशन ऑफ composite numbers. Fine. So this is the first homework I have given to you. You just remember it. ये homework करना है तुमको.
ओके, कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स ऑल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन समझ गए? नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, यही ये आगे बढ़ा दिया है इसने थोड़ा सा जो मैंने बताया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते, एग्जाम्पल 1 को क्या दिया हुआ है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये सच है? हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। एंड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो ऑफकोर्स ये 1 का सेट जो है इस पर पाया रहेगा, कॉमन रहेगा, तो इसीलिए ये ट्रू है। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है? ऑफकोर्स होता है, क्योंकि रैशनल नंबर किससे बनता है? इंटीजर से ही बनता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि रैशनल नंबर में अगर मैंने 2/3 ले लिया, क्या ये 2/3 इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल सिस्टम में 0.6 पर रेकरिंग आ जाएगा। तो 0.6 जो डेसिमल फॉर्म के नंबर्स होते हैं कभी इंटीजर्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओके फाइन, नाउ लेट्स सी। अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। अब आता है कि मैं रैशनल नंबर्स के बीच, पहले रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करूँगी नंबर लाइन पर, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं, फिर एक थियोरम और प्रूफ समझेंगे। चलो देखो, पहले होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है 3 नंबर लाइन को, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, यही पॉसिबल एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। इसको अच्छे से देखो। पहला बोल रहा है बेसिकली ये सारे रैशनल नंबर्स जो हैं 1 - 2 ये क्या है? इंटीजर है। इंटीजर रैशनल नंबर होता है जैसे मैंने बताया है, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। देखो बेसिक्स पढ़ा रहे हो ना भाई, तो थोड़ा तो ईजी लगेगा ही, लेवल बहुत ईजी लगेगा अभी। देखो सबसे पहले है 1 and -2। तो मुझे पता है 1 नंबर लाइन के कौन से साइड में होगा? RHS या LHS? RHS में। इसको याद रखो, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वो RHS में पाए जाएंगे, एंड जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो LHS में पाए जाएंगे, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले 1 ये आइडेंटिफाई करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो कहाँ है? यहाँ है। सो पॉइंट A इज 1। अब -2 है तो नेगेटिव है तो किस साइड होगा? LHS में होगा। अब ये जाहिर हो गया कि ये LHS में होगा। अब दूसरी बात क्या होनी चाहिए? कहाँ होगा? तो यहाँ होगा। दिस इज B। ये तो इजी था ना। अब ये भी बहुत इजी है। देखो 1/2 है और -1/2 है, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले को सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव वाला RHS में होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? पहले सबसे पहली चीज़ मुझे क्या फाइंड करनी है कि 1/2 किन 2 नंबर्स के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो ये 1/2 किन 2 नंबर्स के बीच लाई करेगा? ये 1/2 किन्हीं 2 नंबर्स के बीच लाई करेगा, है। और वो 2 नंबर्स क्या होंगे? ये सिर्फ 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये किस नंबर के बीच लाई करेगा? ये भी एक क्वेश्चन है ना, किस नंबर के बीच लाई करेगा, कैसे पता करेंगे? ठीक है, इसका एक स्टेप होता है, 1/2 है, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर तुम 1/2 को डिवाइड करते हो तुम्हारा आंसर आता है 0.5। अब क्योंकि ये 0.5 है, पहले क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा, क्योंकि पहला 0 आ गया ना, तो उसके बाद 1 आता है तो 0 और 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच लाई करेगा। अब मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है ना, ओनली आई हैव टू फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। क्या है? 2 है, तो मतलब नंबर लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं करना कि ऐसे ऐसे कर देना, ये गलत हो गया। कितने इक्वल पार्ट हो गया? तो 3 इक्वल पार्ट हो गया ना। मुझे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है का मतलब है कि डिनोमिनेटर 2 है तो 2 में 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिर्फ एक ऐसे बार दे देना है, हो गया ना 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। अब 1/2 है तो ये इसको मान लो 0/2 है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, ये हो जाएगा 1 को क्या लग सकता है? 2/2, है ना। तो ये 1/2 पॉइंट C जो है यहाँ पर क्या है? 1/2 है। सिमिलरली -1/2 में करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -0.5, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ 0 और -1 के बीच आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। तो ये यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया? -1/2। पॉइंट D हो गया -1/2। नाउ लुक एट द थर्ड वन। यहाँ पर पहले 3/2 है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है।
2 1s are 2, ये तुम्हारा होल फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इस पर चिंता मत करना। ये तुम्हारे इम्प्रॉपर है ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 होल 1/2, ये भी हो जाएगा -1 होल 1/2। ठीक है, ये इम्प्रॉपर में नहीं था इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसीलिए इसको 0.5 है। ये इम्प्रॉपर है तो इसीलिए इसको 1 होल 1/2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 एंड 2 के बीच में। अब किस पे फोकस करना है, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में कितने हैं, 2 में 1 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, कर दिया। अब ये क्या है, 1/2। सिमिलरली हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 3/2 ये पॉइंट है। यहाँ पर भी वही काम होगा, ये हो जाएगा -3/2। समझ गए, इजी इजी पीसी, वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जान लिया, फाइन। अब क्या सीखना है, तो अब जो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो नहीं करवाऊंगी वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो देखने में थोड़ी दिक्कत होगी तुमको। ठीक है, तो आज मैंने क्या क्या बताया, इसका रिकैप करते हैं, आज क्या क्या बताया है। ठीक है, हाँ, तो आज मैंने क्या क्या बताया तुमको। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन बताई है। दूसरी चीज़ मैंने तुमको क्या बताई है, कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस करवाए हैं। एंड तीसरा डेफिनेशंस करवाए हैं, नंबर सिस्टम में ही डिफाइन दीज टर्म्स भी करवाया है। एंड चौथा मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। ये कुछ चीज़ें, ये चार कंसेप्ट्स मैंने क्लियर करवाए। होमवर्क क्या दिया है, इसको रिवाइज, दैट यू हैव टू रिवाइज दिस। एंड अदर होमवर्क इज राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑपोजिट एंड प्राइम number. This is what we have dealt with today. Okay, next class what we'll be doing is we'll learn a theorem. We'll learn a theorem about finding rational numbers between rational numbers. It will be a very easy concept, and along with that we'll be learning about representation of rational numbers as decimals. This is what is our motto for the next class. So today till here we have done it, and I hope to see those homeworks and the everything in the comment section. So happy learning journey everyone. Thank you.